Students, now we are starting chapter 2, which is physical features of India. And I hope you have done chapter 1 thoroughly. And meanwhile, you have to do exercises and other things. Physical features of India. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly terrain, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. That is, mountains, plains, desert, plateaus, and islands. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. तो बच्चों, आपको पता हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जिसमें हर तरह की फिजिकल फीचर है, चाहे वो डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, वैलीज हो, प्लेन लैंड हो, कोस्टल एरियाज हो, एवरीथिंग. So we find different types of rocks. Some are very hard like marble, which have been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone, which is used in making talcum powder. The color of soil varies from one place to other because soil is formed out of different types of rocks. Have you ever thought about causes of this variation? Most of these variations are caused due to differences in rock formation. तो जो कॉजेज है वेरिएशन का, लैंड फीचर्स का, वो उनका कारण है रॉक फॉर्मेशन. और उन रॉक फॉर्मेशन में जो डिफरेंट टाइप के रॉक है, जैसे मार्बल जो कि हार्डेस्ट माना जाता है, और सोप स्टोन जिसका टेल्कम पाउडर बनाने में यूज़ होता है. तो डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं जो अलग अलग अर्थ फॉर्मेशन में अपना अपना रोल निभाते हैं. India is a large landmass formed during different geological periods, which have influenced relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion, and deposition have created and modified relief to its present form. Earth scientists have attempted to explain formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One such plausible theory is the theory of plate tectonics. According to this theory, the crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. अर्थ के फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरी है. उसमें से एक थ्योरी है जो कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल यानी मान्यता प्राप्त है, एक्सेप्टेड है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. इसके अनुसार जो अर्थ है वो फॉर्म हुआ है 7 बड़े बड़े और कुछ छोटे प्लेट्स को मिलाकर, और इन प्लेट्स का मूवमेंट हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है और उसकी वजह से कई सारी एक्टिविटीज़ होती है. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक अबव, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी. तो फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारे इन प्लेट्स के आपस में इंटरेक्शन से होता है. ब्रॉडली दिस प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. While some plates come towards each other and form convergent boundary, some plates move away from each other and form divergent boundary. In the event of 2 plates coming together, they may either collide or crumble, or one may slide under the other. At times, they may also move horizontally past. So, अगर आप पिक्चर को देखें अच्छे से, तो जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं और कोलाइड करते हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होता है. अगर 2 प्लेट एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो, अलग अलग मूव करे, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होती है और बीच में फॉल्ट बनता है यानी गड्ढा सा बनता है. और एक प्लेट एक दूसरे के पैरेलल
आगे पीछे खिसके तो इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें अब नए सिलेबस में एक्सक्लूडेड है। न्यू जो टेक्स्ट बुक आपके पास आएगी वो उसमें ये सारे सेक्शन हटा दिए गए हैं। So the movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. Such movement have also influenced the evolution of the present landform features of India. The oldest landmass, the peninsula part, was a part of Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, and South America and Antarctica as one single landmass. The convectional current splits the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. इसको आप ऐसे समझें, पुराने टाइम में जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, जो आज के डेट में 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो सब के सब एक साथ हुआ करते थे और उनका कंबाइंड नेम था पैंजिया। और जो 5 ओशियंस है उन सब वो सारे ओशियंस अर्थ के बीचों बीच सिचुएटेड थे। और धीरे धीरे ये जो प्लेट्स है वो आपस में एक दूसरे से हटते गए और फिर धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में फिर उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ और वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में है। तो उसी पैंजिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो अंगारा लैंड कहलाता था और साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड। तो इंडिया भी बना है, उस इंडिया का जो हिमालय के साउथ का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जबकि हिमालयन माउंटेन, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों के ज्वाइन होने से बना हुआ एक फोल्डेड माउंटेन है। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by rivers flowing from mountains in the north and peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. मतलब जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों के टकराने से बीच में हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ था। हिमालयन माउंटेन के साउथ में जो डिप्रेशन था, गड्ढा था, वो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाले रिवर्स ने अपने साथ जो डिपॉजिट जमा किया, उससे लाखों सालों में ये इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका फॉर्मेशन हुआ। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are most recent landforms. ऐसा माना जाता है कि जो हिमालयन फॉर्मेशन है, हिमालयन माउंटेन्स है, वो कंपेरेटिवली मॉडर्न फॉर्मेशंस है और इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो काफ़ी पुराना लैंड मास है जो कि गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन माउंटेन का जो हिस्सा है वो अनस्टेबल जोन माना जाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक केंद्र माना जाता है। जैसे हिमालय के बहुत सारे रीजन हैं जो अर्थक्वेक जोन में आते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो
असल में ये जो सेक्शंस है अभी हमने जो भी डिस्कस किया है, ये मॉडर्न जो आपकी करंट बुक है उसमें एक्सक्लूडेड है। करंट बुक में आपको यहाँ से पढ़ना है, जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, इस वाले पोर्शन से आपको करना है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो आपको डाउट रह जाए वो, एक तो मैं जब रिवाइज करूँगा चैप्टर फिर से क्लास में आफ्टर लॉकडाउन, तब तो आपको सारे डायग्राम्स बनाकर सही तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स।